Good morning, students. Today we start chapter 8, quadrilateral for class 9th standard. Now, in last two videos, we completed exercise 8.1 and 8.2. Now, we start exercise 8.3. Before exercise 8.3, we start midpoint theorem. This is very important theorem. Listen carefully. Its statement is the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. ध्यान से देखिएगा. This is triangle A, B, C. E is midpoint of AB and F is midpoint of this. This is given. Okay. What is given? In triangle ABC, E and F are the midpoints of AB and AC respectively. So, what you have to prove? EF is parallel to BC, but one part is missing. Is parallel to the third side. एक part is missing है इसमें, and half of it. इसका correct statement होना चाहिए. The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. तो क्या प्रूव करना है आपको? पहले गिवन लिखते हैं. In triangle ABC, E and F are the midpoint of AB and AC respectively. Okay. Then 2. EF is half of BC and EF is parallel to BC. ये दो पार्ट प्रूव करना है. इस लाइन जो लाइन मिड पॉइंट जॉइन कर रही है वो लाइन थर्ड लाइन की हाफ होगी और पैरेलल होगी. कंस्ट्रक्शन. reduce EF to G. EF को G तक प्रोड्यूस किया. EF को G तक प्रोड्यूस किया such that EF equals to FG and join C to G. और C को G से ज्वाइन कर दिया. जैसा मैं पहले बता चुका आपको ऑलरेडी. जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा हमेशा डॉटेड लाइन से होगा, ध्यान रखिएगा. ओके. प्रूफ. ओके. प्रूफ क्या कर रहा है, क्या आपको EF को BC के पैरेलल प्रूव करना है और हाफ प्रूव करना है. ये दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आपको. पहले कॉर्डिनेट प्रूव करते हैं ट्रायंगल्स को. इन ट्रायंगल AFE and triangle CFG. Triangle this and triangle this. First point, AF equals to FC. Given. रीजन हमेशा लिखें. एंगल मार्क कर दें, इजी रहेगा मार्क करने में. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा. These are vertically opposite angles. Third point, EF equals to FG by construct. Okay. By SAS congruency triangle AFE congruent triangle CFG. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. बाय CPCT. CPCT you know, corresponding part of congruent triangle, when two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. By CPCT, A equals to CG. A equals to CG number 1. Okay, and
This is angle 3. This is angle 4. Angle 3 and angle 4. And angle 3 equals to angle 4, number 2. Why? These are alternate. No need of this number डालनी उतनी पड़ेगी. These are alternate interior angles. ये alternate angles हैं. And you know alternate angles are equal, lines are parallel. So AE parallel to GC या AB is parallel to GC. AB is parallel to GC or EB. AB is parallel to GC. Okay. When these two lines are parallel, their parts are also parallel. Okay. अब देखिए बेटा, A equals to GC, A equals to B या EB. Number 3. Why? E is midpoint of AB. कर सकते हैं by 1 and 3. A equals to EB and A equals to G. EB equals to CG. या GC. Number 4. Okay. In quadrilateral, एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है आपको, BC GE. We'll take triangle quadrilateral BCG. इस क्वाड्रिलेटरल BCG में पहला पॉइंट देखिए, EB parallel to GC. This point is C. Okay. And next point, 4th point, EB equals to EB equals to GC. And you know, if one pair of sides equal and parallel, this is called parallelogram. So BCGE is a parallelogram. When this parallelogram, say opposite sides are parallel, so EG is parallel to BC. Opposite sides of parallelogram. When EG is parallel to its part, EF is also parallel to BC. Okay. Similarly, EG equals to BC. Okay. EG is double of EF. EG will expect double of EF is BC. Yeah, EF equals to half of BC. This is one part and this is, ये दो पार्ट है. EF is half of BC and EF is parallel to BC. ये midpoint theorem है, you know very well. If in a triangle there are 2 midpoints, this line is parallel in half of third side. This is very important theorem for exercise 8.3. इस theorem के बिना exercise नहीं हो पाएगी. Then I will take converse midpoint theorem. कैनवास ऑफ midpoint theorem का सिर्फ मैं प्रॉपर्टी समझाऊंगा आपको. ओनली प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी ट्राइंगल में यदि ये मिड पॉइंट है, E is midpoint of AB and EF. This point is F. EF is parallel to BC. So F is midpoint of AC. क्या प्रूव करना है आपको? F is midpoint of AC. मिडपॉइंट थ्योरम में दोनों मिडपॉइंट थे, इसमें एक मिडपॉइंट है, दूसरा लाइन पैरेलल है, थर्ड में क्या होगा? मिडपॉइंट. ये है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम. इसकी जो एग्जांपल्स हैं आप देख लीजिएगा.
फिर भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट्स में डाल दें, आई विल एक्सप्लेन। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, ABCD is quadratic. Quadrilateral means four-sided figure. These are midpoints. E, P, Q, R, and S are the midpoint of AB, BC, CD, and AD respectively. You have to prove. Okay. PQRS are the midpoints. ये midpoint है, दोनों equal 333 444, यानी ये PQRS are the midpoints of this. First you write given, simple given. In quadrilateral ABCD, PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, and AD respectively. PQRS form a quadrilateral. ओके ये आपको गिवन है। टू प्रूफ मैं गिवन नहीं लिख रहा हूं, देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, SR is parallel to AC and SR is half of AC. फर्स्ट पॉइंट, SR PQ के AC के पैरेलल है और SR is half of this. नंबर 2, PQ equals to SR, PQRS is a parallelogram. This is very important question क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सभी इस पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस, इसलिए इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, स्पेशली थर्ड पार्ट को। ओके, और थर्ड पार्ट के लिए फर्स्ट सेकंड पार्ट आपको देखने पड़ेंगे ध्यान से। ओके, नाउ प्रूफ कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी AC ज्वाइन करके दे रखा है, यदि एग्जाम में नहीं दे रखा हो तो यू हैव टू ज्वाइन। कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन A to C। एग्जाम में नहीं दे रखा होता जनरली AC ज्वाइन करने का, यदि नहीं दे रखा हो तो आप लिख देंगे ज्वाइन A to C कंस्ट्रक्शन। कैन प्रूफ इन ट्रायंगल ADC, मैंने ट्रायंगल ADC क्यों लिया? योर रिक्वायरमेंट इज ऐसा, ऐसा कहाँ आएगा इन ट्रायंगल ADC में आएगा ऐसा, इसलिए मैंने ट्रायंगल लिया ADC। S एंड R are the midpoints of AD and DC respectively. Okay, S AD का midpoint है, R DC का midpoint है, आपको दे रखा है। So SR is half of AC and SR is parallel to AC by midpoint theorem. Okay, by midpoint theorem, this first part is done. Okay, this is first part. I think very simple. Okay, for second part, PQ के लिए लेंगे अपन ट्रायंगल ABC। In triangle PQR, same procedure, P and Q are the midpoints. P and Q are the midpoints of AB and BC respectively. जब P और Q मिड पॉइंट्स हैं AB और BC के, तो PQ क्या होगा? हाफ ऑफ AC and PQ is parallel to AC. Property same by midpoint theorem. Okay. By
1 and 2. This is number 1 और this is number 2. ध्यान से देखिए, SR is half of AC, PQ is half of AC, PQ equals to SR, and PQ is parallel to SR because SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC. Finally, PQ is parallel to SR. Okay, second part. Okay, third part. In quadrilateral PQRS, PQ equals to SR and PQ parallel to SR. वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल दिए, इसकी इक्वल भी हो गई, पैरेलल बन गए, क्या बन गए हैं? PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PQRS बन गया अपना पैरेललोग्राम. ओके, ये जो थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 सब में काम आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे एक बार देख लें आप. क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a rhombus. Rhombus जानते हैं, a quadrilateral in which all sides are equal. ABCD is a rhombus, all the sides are equal. PQRS are the midpoints. PQRS are the midpoints of AB. ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? शो दैट क्वाड्रिल PQRS इज अ रेक्टेंगल. तो 2 प्रूव हो गया अपना. PQRS इज अ रेक्टेंगल. ओके, कंस्ट्रक्शन join A to C. जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, आपको कंस्ट्रक्शन नहीं देखा होता एग्जाम में, इसे आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा खुद अपने हाथ से. तो ज्वाइन A to C, AC को ज्वाइन कर दिया. इसमें 2 कंस्ट्रक्शन होंगे, ज्वाइन A to C एंड B to B. मैं अभी सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ इसका, दोबारा दूसरा क्वेश्चन का बाद में होगा. रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा PQRS is a पैरेललोग्राम. पहले इसको प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम. ओके, यहां से लेके यहां तक एवरीथिंग इज सेट. क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ का फर्स्ट पार्ट से लेके थर्ड पार्ट तक बिल्कुल सेम कॉपी करना है उसको. आपको नंबरिंग नहीं डालना. ओके, ये नहीं डालना, बाकी ये पार्ट पूरा एज इट इज करना है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये पार्ट आपको सेम करना है. ठीक है, तो लास्ट रिजल्ट क्या है अपना? PQRS is a parallelogram. PQRS पैरेललोग्राम यहां तक आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं. ओके, इसके बाद जब PQRS पैरेललोग्राम कर देंगे आप, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं. इसको मैं नंबर 1 डाल रहा हूं. दिस इज 2 और दिस इज 3. ओके, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3. एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री. नंबर 3 तक हम लोग ले चुके हैं. ये मैं नंबर ले रहा हूं 4. ओके, एंगल 1 इज 90 डिग्री बिकॉज diagonals of rhombus perpendicular to each other. Okay, ओके, ये परपेंडिकुलर क्या होता है? डायगोनल्स क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. corresponding angles, angle 2 equals 3, alternate interior angles.
So angle 3 is 90 degree. एंगल 390 डिग्री बन गया. ओके, पी क्यू आर पैराग्राम है, एंगल 90 डिग्री है, क्या बन गया? पी क्यू आर एस इज अ व्हाट? रेक्टेंगल. ओके, पैराग्राम तो प्रूव करना पड़ेगा, सेम कंडीशन. बाकी जब भी पैराग्राम का एक एंगल 90 बनेगा तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल. तो आपको एक एंगल 90 करना है. क्वेश्चन नंबर 3. ABCD is a rectangle. PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DE respectively. Show that PQRS is a rhombus. इस बार आपको PQRS को rhombus प्रूव करना है और गिवन क्या है? ABCD is a rectangle. उल्टा कर दिया इस बार, पहले rhombus था, अब इसको चेंज कर दिया. A, B, C, D, P, Q, R, S, ठीक है. PQRS is a rhombus. Question number 3. Okay. PQRS को rhombus प्रूव करना है. Okay. Again same procedure. अगेन से प्रोसेसर मैंने बोला, यहां से लेके आता से फर्स्ट प्रूव PQRS पैराग्राम. क्वेश्चन 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में किया, सेम प्रोसेसर आप करेंगे. PQRS इज अ पैराग्राम. पैराग्राम तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे रोमबस करना हो, रेक्टेंगल करना हो या स्क्वायर करना हो. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया अपना PQRS पैराग्राम. यहाँ तक बिल्कुल सेम कॉपी करना है आपको, सेम क्वेश्चन 1 का पूरा लास्ट तक सेम कॉपी करना है. ओके, उसके बाद किसी भी पैराग्राम को रोमबस प्रूफ करने के लिए क्या जरूरी है? उसके दो पेयर, पास वाले पेयर यानी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करते हैं अपन. ओके, देन आफ्टर दैट इन ट्रायंगल एसीपी, इन ट्रायंगल क्यूबीपी, ये दो ट्रायंगल है, एसीपी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनको पॉइंट कर देंगे, हो जाएगा अपना फर्स्ट पॉइंट AC इक्वल्स टू QB. Why? Because AD equals to BC, opposite side of rectangle. S and Q are midpoints. जब साइड्स इक्वल हैं, पूरी साइड इक्वल है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया, फर्स्ट पार्ट. सेकंड, AP इक्वल्स टू PB. P is midpoint. P is midpoint. Angle A equals to angle B. Each 90 degree. Angle A, angle B दोनों each 90 degree हो गए. By SAS congruency, triangle ACP, congruent triangle QB, ये दोनों ट्रायंगल congruent हो गए. बाय CPCT, बाय CPCT क्या होगा? PS इक्वल्स टू PQ. PS एंड PQ क्या है? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैराग्राम. साइड्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल. So PQRS is a what? Rhombus. PQRS क्या बन गया? Rhombus. ओके, आपने देखा, यदि ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो जाएगा.
After that, I will take question number 4. It is slightly different. क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम्स ऑलरेडी गिवन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को, आप लोग समझ जाएंगे जहाँ तक है। ABCD is a trapezium. You know what is trapezium? If in a quadral, one pair of sides parallel. In quadral ABCD, AB is parallel to BC आपको दे रखा है. So this is trapezium. ABCD is a trapezium which AB is parallel to DC is given. BD is diagonal. E is the midpoint. इस तरह मार्क कर देंगे, इसको आपको इजी रहेगा सॉल्व कर देखने में. Midpoint of BD, a line is drawn, passes through E, parallel to AB. This line is also parallel to AB. आपको दे रखा है. Show that F is the midpoint of BC. तो टू प्रूव हो गया इसका CF equals to FB. CF equals to FB यानी F is midpoint of BC. Okay. No need of construction. Proof. ध्यान से देखिए. In triangle DAB, EG is parallel to AB. This is given. E is midpoint of AD. This is also given. Okay. याद आया कन्वर्शन मिडपॉइंट थ्योरम. किसी ट्रायंगल में एक पॉइंट मिड पॉइंट है और ये लाइन बेस के पैरेलल है, जी क्या होगा? डीबी का मिड पॉइंट. सो जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ये हो गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अब लेंगे ट्रायंगल बीसीडी. बीसीडी एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सॉरी जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी. कहां से आया? प्रूव्ड है, ऊपर प्रूव किया अपन ने. एंड जीएफ इज पैरेलल टू डीसी. व्हाई? बिकॉज AB is parallel to this and this is parallel to this, so naturally these are parallel. Okay. So by converse of midpoint theorem, F is midpoint of BC. F is midpoint of BC by converse of midpoint theorem. Very simple. Okay. This is question number 4. Now question number 5. F is midpoint of this and E is midpoint of this.
ओके, टू प्रूफ क्या करना है, ये जो लाइंस हैं these are trisect BD. Trisect means divide in 3 equal parts. Bisect means divide in 2 equal parts. Trisect means divide in 3 equal parts. तो आपको तीनों पार्ट्स इक्वल करना है. This equal this यानी DP equals to PQ equals to QP. ये आपको प्रूफ करना है. ओके, प्रूफ. लेकिन इस पे आपको मिड पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा, पैरेलल वगैरह कुछ नहीं दे रखा आपको. तो ध्यान से देखें. फर्स्ट शर्ट प्रूफ, ACF is a parallelogram. AECF is parallelogram. जब तक पैरेललोग्राम नहीं हो पाएगा क्वेश्चन अपना. तो AB equals to DC, you know, opposite sides of parallelogram. AB is double of AE, double of FC. AE equals to FC and AE parallel to FC. Okay. क्या हो गया, ए अपने एफ सी की इक्वल भी हो गया और पैरेलल हो गया. बाय दिस पैरेलल बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी. ओके, अब ध्यान से देखें. क्वाड्रिलेटरल में इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, ये दोनों पॉइंट्स क्या लेके आएंगे, क्या बन जाएगा, ई सी एफ इज पैरेलल. ECF is parallelogram. When it is parallelogram, so AF parallel to EC. Important point, AF parallel to EC. ये अपने सबसे ज्यादा काम आएगा. ये पार्ट अपने सबसे ज्यादा काम आएगा, इसलिए मैं ब्लॉक के लिए मार्क कर रहा हूँ इसको. ओके, यानी ये वाला पार्ट अपने इसके पैरेलल प्रूव कर दिया, लेकिन फिगर में मार्क नहीं करेंगे. अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ. जो रिक्वायर्ड पार्ट है मैं रख रहा हूं, उसको बाकी पार्ट को रिमूव कर रहा हूं. ध्यान से देखें. इन ट्रायंगल DQC, दिख रहा है, इन ट्रायंगल DQC F इज मिड पॉइंट ऑफ DC, मिड पॉइंट ऑफ DC. F इज मिड पॉइंट ऑफ DC. आगे लिखते हैं गिवन PF parallel to QC, PF is parallel to QC. कहां से आया, because AF is parallel to AC. रीजन लिखते हैं इसमें, because AF is parallel to AC. Okay, so अब ध्यान से देखें. इन ट्राइंगल DQC F मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो P क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ DQ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. सो by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem क्या हो गया, P is midpoint of DQ. P is midpoint of D. P DQ का मिड पॉइंट हो गया. रिजल्ट DP इक्वल्स टू PQ. रिजल्ट आ गया अपना DP इक्वल्स टू PQ नंबर 1. आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, एक मिड पॉइंट है, पैरेलल कर दिया था अपन ने, तो ये क्या हो गया इसका मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, आफ्टर दैट वी चेंज द ट्रायंगल. आई थिंक विजिबल होगा. इन ट्रायंगल ABP, दिख रहा है, इन ट्रायंगल ABP E is midpoint of AB. This is given. AB parallel to EQ. By this reason, so by converse of midpoint theorem, Q is midpoint of
of PQ, PB. Q is midpoint of PB. Result PQ equals to QB. PQ equals to QB number 2 by 1 and 2. DP equals to PQ equals to QB. ये आपको प्रूव करना था. ओके. लास्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Diagram is not given. AB is triangle. ABC is triangle, rectangle at C. A line through the midpoint of M of AB. M is midpoint of AB आपको दे रखा है. Parallel to BC. Intersect AC at D. ये आपको दे रखा है. Show that to prove first part D is midpoint of AC. Second part MD is perpendicular on AC. Third part CM equals to MA half of AB. ठीक है. प्रूफ ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पार्ट्स क्लियर है इस क्वेश्चन में. इन ट्रायंगल एसीबी, राइट एंगल के लिए हमेशा पीछे बोलते हैं. इन ट्रायंगल एसीबी एम इज मिडपॉइंट ऑफ एबी given. BC is parallel to MD, it is also given. So D is midpoint of AC. By converse of midpoint theorem, easily कर पाएंगे आप लोग. I repeat it. In triangle ACB, M is midpoint of AB given. MD parallel to BC, it is also given. So D is midpoint of AC by converse of midpoint theorem. First part easily आप कर पाएंगे. Okay. Second part, BC is parallel to MD. So, angle BCA equals to angle MDA. These are क्या रिलेशन दोनों एंगल्स में है? These are corresponding angles. These are corresponding angles. So, angle MDA 90 degree. 90 degree means MD is perpendicular on AC. MD क्या हो गया? AC के ऊपर perpendicular बन गया. Okay. अब ले रहे हैं CM. Okay. दो ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको. For third part, in triangle MDC and triangle MD कॉन्वेंट करना है. MD इक्वल्स टू MD कॉमन. MD इक्वल्स टू MD कॉमन. CD इक्वल्स टू DA. ये आप ऊपर प्रूव कर सकें. D इज मिडपॉइंट ऑफ AC. फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं ऑलरेडी. एंगल MDC इक्वल्स टू एंगल MDA. Each 90 degree. By SAS congruency, triangle MDC congruent triangle MD. By CPCT क्या होगा?
CM equals to MA. CM equals to MA. Okay. What is MA? Is half of BC. MA is half of AB. M क्या है? AB का मिड पॉइंट है तो MA क्या होगा? AB का हाफ. नंबर 1 and number 2 by 1 and 2 CM equals to MA equals to half of AB pro. इस तरह ये थ्योरम आप इजीली क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो देखने में, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हो, प्लीज अपने व्यूज कमेंट्स शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज शेयर जरूर करें. नेक्स्ट वीडियो में जाएगा सर्किट बेस्ड. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.